Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter noun. So from the abstract noun we are going to do some exercise from abstract noun using appropriate suffix. So we have to use a suffix, मतलब आपको पीछे suffix ऐड करना है और इसे abstract noun में convert करना है. So the first one is able. able कोई चीज़, मतलब एबल मतलब क्या होगा, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एबिलिटी है. सॉरी एबल का आप क्या करोगे, एबिलिटी. एबल का आप क्या करोगे, एबिलिटी. ABILITY एबिलिटी. अगर हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो हम उसे क्या कहेंगे, एबिलिटी. ABILITY एबिलिटी. डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट, अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो हम क्या कहेंगे, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसे डिफ़िकल्टी. उसे हम क्या कहेंगे, डिफ़िकल्टी. राइट डाउन DIFFICULTY डिफ़िकल्टी. थर्ड वन इज एक्सप्लोर. थर्ड वन इज एक्सप्लोर और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन. राइट डाउन EXPLORATION एक्सप्लोरेशन. फोर्थ वन वॉर्म. फोर्थ वन इज वॉर्म और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वार्मथ. लिखोगे वार्मथ, WARMTH वार्मथ. फिफ्थ वन हीरो. हीरो क्या हो गया, मतलब जो पर्सन है वो, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हीरोइज्म. उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हीरोइज्म. राइट डाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हीरोइज्म, HEROISM हीरोइज्म. सिक्स वन फॉल्स. सिक्स वन इज फॉल्स. राइट डाउन FALSEHOOD falsehood. FALSEHOOD falsehood. Now the seventh one agent. agent. agent कहाँ वर्क करता है, एजेंसी. राइट डाउन एजेंसी, AGNCY एजेंसी. ब्रेव. ब्रेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ब्रेवरी. क्या होगा, ब्रेवरी. BRAVERY bravery. Ninth one is young and the abstract noun for this is youth. Write down youth, YOUTH youth. Tenth one is high. Tenth one is height and the abstract is height. Height. 11th one is vain. 11th one is vain and the abstract noun is vanity. VANITY vanity. 12th one consistent. इसका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी. राइट डाउन कंसिस्टेंसी, CONSISTENCY CONSISTENCY consistency. 13th one grow. 13th one is grow and the abstract noun is growth. Madam, growth, GROWTH growth. Fourth invite. 14th one is invite और ये क्या हो जाएगा, invitation, INVITATION invitation. 15th one judge. 15th one is judge and judgment and I say judgment. 16th one is neighbor. Neighborhood. Write down the abstract noun neighborhood, NEIGHBOURHOOD neighborhood.
17th one, member. Write down the abstract noun membership. Write down membership. 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 18th one is king. So you can either write kingdom or kingship. Write down kingdom. 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 Now in the C, write two proper noun for each common noun. So in this you have to write the name of the noun. Like I will help you with 2-3 and you have to write others. Okay. Common noun car. You can write the name of two cars like Toyota or Maruti. You can write Toyota or Maruti. They are the proper noun. अब restaurant हो गया. You can write two restaurant name like Domino's and Pizza Hut. They are two restaurants actually. Then third one is friend. Write the name of your two friends. Write the name of your two friends. Like I can write Karthik or Ishan. So you can write your own two friends name. Then you have to write two names of river, then two oceans name, two seas name, dog, film, novel. What is a novel? A long book. Okay, you can Google it. School, store. Store means shops. Big bazaar. You can write teacher's name, two teacher's name. So in the common noun you don't have the name, but in the proper noun you have to write their name. Okay, so you have to complete it by yourself and send me the answer also. Now let's come to the number of noun. When we talk of one person, animal or thing, we say that it is in the singular form. जब हम किसी वन पर्सन मतलब सिंगल पर्सन, वन पर्सन एनिमल या थिंग की बात करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर फॉर्म कहेंगे. सिर्फ एक की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग, पियानो, ऑक्स, मैगजीन, कंट्री, काफ. तो इससे हमें पता लगता है हम सिंगल डॉग, सिंगल पियानो की बात कर रहे हैं. When we talk of more than one person, animal or thing, we say that it is in the plural form. अगर हम एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं की बात कर रहे हो पर्सन, एनिमल या थिंग की, तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जांपल डॉग्स. अब यहाँ पे डॉग नहीं है, यहाँ क्या है? डॉग्स. पियानोज, ऑक्सन, मैगजीन्स, कंट्रीज, काव्स. तो जो अबव एग्जांपल थे उनके ये प्लूरल फॉर्म है. ठीक है, अगर वो एक से ज़्यादा हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? सो देर आर सम रूल्स अबाउट दी चेंजिंग ऑफ सिंगुलर इनटू प्लूरल. अब हमने सिंगुलर को प्लूरल बनाया है. आपने देखा कि अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दोबारा दिखाते हैं. जैसे डॉग का हमने डॉग्स कर दिया, पियानो का हमने पियानोस कर दिया, ऑक्स का हमने ऑक्सन किया है, ऑक्स का हमने ऑक्सन किया है, कंट्री का हमने कंट्रीज़ किया है, काल्फ का हमने काव्स किया है. तो हम सिंपली एस या ई एस लगा के चेंज नहीं कर सकते. देयर आर सम रूल्स अबाउट इट कि हमें कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ आई ई एस लगाना है. तो ये हम रूल स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन, काउंटेबल नाउन. मोस्ट nouns are countable, we can count them. For example 10 marbles, 3 pencil. ज़्यादातर जो नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि 2 person, 3 boys, 15 school, 14 pencil, कुछ भी हम काउंट कर सकते हैं उन्हें. काउंटेबल नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल इन डिफरेंट वे. लेट अस लर्न अबाउट इट. जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो अपने प्लूरल से डिफरेंट होते हैं. मैनी नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस. फॉर एग्जाम्पल मोस्टली नाउन्स को हम प्लूरल कर देते हैं एडिंग एस. ज़्यादातर में हमें क्या करना होता है? एस ही ऐड करना होता है. लाइक
बुक का बुक्स, विंडो का विंडोज़, कॉम का कॉम्स। ओके, हमें जस्ट एस ऐड करना होता है और ये प्लूरल हो जाते हैं। Now next one, nouns which end with s, ss, sh, ch, z or x form their plural by adding es। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में s, डबल s, sh, ch, z या x आता है, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, es लगाते हैं। लाइक बस, बस के आगे s आया तो हम क्या लगाएंगे, बसेस। मास, डबल s आया है, मासेस। डिश, डिशेस। चर्च, चर्चेज। ब्लिट्स, ब्लिट्सेस। फॉक्स, फॉक्सेस। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो ये लास्ट में हमारे अल्फ़ाबेट्स आए हैं, बिल्कुल अगर वैसे आए हो तो हमें ES लगाना है, हमें S नहीं लगाना है उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, नाउ nouns which end in O form their plural by adding ES। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाउन के एंड में ओ आ रहा है, ठीक है, नाउन के एंड में ओ आ रहा है तो उसके आगे हमें क्या लगाना है, ES लगाना है। लाइक मैंगो, मैंगोज। पोटैटो, पोटैटोज। टोमेटो, टोमेटोज। ओके, जब ओ आता है एंड में तो हमें ES लगाना है। सम नाउन विच एंड इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग S। एग्जाम्पल, अब देखो कुछ में ऐसे होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओ लगाने पे ES लगाना है, और कुछ में ऐसे होता है कि ओ लगाने पे S भी लगाना है। ये कुछ एक्सेप्शन है, लाइक जैसे कि फोटो, फोटोज़। पियानो, पियानोज। जू, जूज। ठीक है, कि कभी आपके ES भी लगा सकते हैं और कभी S भी लगा सकते हैं, मतलब डिफरेंट है। आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको ये याद करने पड़ेंगे कि किस में S लगेगा, किस में ES लगेगा। Some noun that end in F or FE form their plural by changing the F or FE to V and adding ES। जिन नाउन के एंड में F या FE आता है तो हम वहाँ पे F और FE को हटा के VES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, VES। लाइक थीफ, थीफ के लास्ट में F आ रहा है, F को हम हटा देंगे, क्या आ जाएगा, VES। थीव्स बन जाएगा हमारा। वाइफ, लास्ट में क्या आ रहा है, FE आ रहा है तो हम FE को पूरे को हटा देंगे और VES लगा देंगे, वाइस। लाइफ, लाइफ के आगे FE आ रहा है, हमने FE को हटा के VES लगा दिया, लाइफ्स। सम नाउन विच एंड इन FE, F और FE फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग S। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके हम आगे F और FE को हटाने की जरूरत नहीं, हम सीधा S भी लगा सकते हैं। लाइक रूफ, चीफ, बिलीफ। रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, बिलीव का बिलीव्स। Some noun which end in a consonant followed by Y form their plural by the changing the Y into I and adding IES। अगर कोई नाउन है जो Y पे एंड हो रहा है, जो Y पे एंड हो रहा है, उससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, वो आ रहा है, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है आपका। आपको पता है कॉन्सोनेंट और वोवल क्या होते हैं, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ पे T आ रहा है, T इज़ अ कॉन्सोनेंट। आर्मी, आर्मी में Y से एंड हो रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है, M, M इज़ अ कॉन्सोनेंट। लॉरी, लॉरी में Y आ रहा है और Y से पहले क्या आ रहा है, R, R में क्या है, कॉन्सोनेंट, R क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, Y को हटा के IES लगा देंगे, Y को क्या हटा के क्या करेंगे, IES। सिटी का सिटीज़, आर्मी का आर्मीज़, लॉरी का लॉरीज़। Noun which end in vowel followed by Y from their plural by adding S। अगर वॉवल आ रहा हो Y से पहले, जैसे डे, डे में Y से पहले क्या आ रहा है, ए इज़ अ वॉवल। डोंकी में Y से पहले क्या आ रहा है, ई इज़ अ वॉवल। बॉय में Y से पहले क्या आ रहा है, ओ क्या है, वॉवल। तो हम क्या करेंगे, सीधा S ऐड कर देंगे। डे, डेज। डोंकी, डोंकीज। बॉय, बॉयज। ओके, सो we will stop our chapter here. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.